ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں متی کی انجیل کے 24ویں باب میں، جس طرح سے ہم نے پیچھے سیکھا کہ یسوع مسیح نے کہا جب یہ باتیں ہونے لگیں تو کیا کرنا ہے؟ سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا ہے، کیونکہ تمہاری مخلصی نزدیک ہے۔ آمین۔ جب شاگردوں نے یسوع مسیح سے پوچھا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے کا نشان کیا ہوگا، تو یسوع مسیح نے بہت ساری باتیں اس حوالے سے بتائیں اور لڑائیوں کی افواہوں کا ذکر کیا، کال بنچال اور مری کا ذکر کیا، اعزار ثانیوں کا بھی ذکر کیا، بہت ساری تکلیف اور مشکلات کا بھی ذکر کیا۔ لیکن یہ ساری باتیں جو آپ نے پڑھی اور سنی ہیں پچھلے دنوں میں بھی، اور اس کو کئی بار آپ نے پڑھا بھی ہے، ایک خاص بات پر آپ کی توجہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پر غور کریں۔ کوئی چیز اس سارے حالات میں مسیحیوں کو نقصان نہیں دے سکتی۔ کال بچال مری لڑائیاں کی افواہیں، اعزار ثانیہ، کلام میں لکھا ہے تمہارا سر کا بال بھی بیکا نہ ہوگا۔ آمین۔ لیکن ایک بات ہے خطرناک جس کا میں آج ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور آپ نے اس بات کو غور سننا ہے جو ایمانداروں کا نقصان کر سکتی ہے۔ بہت ساری باتیں ایمانداروں کا نقصان نہیں کر سکیں گی، لیکن ایک بات ہے جو ایمانداروں کا نقصان کر سکتی ہیں۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے۔ 24ویں باب کی 3 آیت سے پڑھتے ہیں، 3 آیت سے۔ اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا، جب یسوع مسیح زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، اس کے شاگردوں نے الگ بیٹھ کر اس کے پاس آ کر یوں کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی، ہم کو یہ بتا یہ باتیں کب ہوں گی، اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا تیرے ہوگا؟ آنے کا اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خبردار، یسوع مسیح نے جواب میں ان سے کہا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے۔ آمین۔ یہ باتیں شروع ہونے والی تھیں، باقی ساری باتیں بتانے والا تھا، اس سے پہلے اس نے کہا خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے۔ آمین۔ جو ایمانداروں کے لیے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے۔ یہ بات شاگردوں سے ہو رہی تھی۔ بائبل لکھا ہے الگ انہوں نے یسوع مسیح کو بٹھا کر یہ باتیں پوچھیں کہ دنیا کے آخر کا اور تیری آمد کا نشان کیا ہے۔ الگ جا کر شاگردوں نے پوچھا جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا ہوا تھا، تو یسوع مسیح نے ساری باتوں کے بارے میں کوئی خطرناک بات نہیں بتائی کہ یہ آپ کے لیے خطرہ ہوگا، لیکن شروع میں خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے۔ سب سے جو خطرناک بات ہے اس میں وہ ہے ایمانداروں کا گمراہ ہونا۔ اب ایماندار کس طرح سے گمراہ ہو سکتے ہیں، اور یسوع مسیح نے کیوں یہ کہا اپنے شاگردوں کو کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کا خطرہ ہے۔ جہاں پر خطرہ ہو وہاں پر خبردار لکھا جاتا ہے، لکھا ہوتا ہے نا، خبردار
पुल टूटा हुआ है, खबरदार, 11,000 वोल्ट, इस तरह की बातें जहां पर खतरा हो वहां पर लिखा जाता है खबरदार। तो यीशु मसीह ने कहा खबरदार, कोई तुमको गुमराह ना कर दे। ये गुमराह होना राह से हट जाना, राह से गुम हो जाना। कोई तुमको उस राह से जिस राह पर तुम जा रहे हो हटा ना दे, गुम ना कर दे। खबरदार, कोई तुमको गुमराह ना करे। अगर मत्ती की इंजील में 11वां बाब भी पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील के 11वीं आयत 24वें बाब की पढ़ते हैं, 24वें बाब की 11वीं आयत भी पढ़ते हैं। और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे। बतेरों को गुमराह करेंगे। यीशु मसीह ने कहा खबरदार, गुमराह ना हो जाना। कैसे गुमराह होंगे लोग? बाइबल में लिखा है बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुत से लोगों को गुमराह कर देंगे। ये झूठे नबी क्या करेंगे? झूठी नबूवतें करेंगे। झूठे नबी झूठी नबूवतों के जरिया से लोगों को गुमराह कर देंगे। एक तो जरिया यह है कि झूठे नबियों के जरिया से लोगों को गुमराह किया जाएगा। इन हालातों में इस बात का खतरा भी है। और मैंने पहले भी यह बताया आपको कि बहुत सारे लोग इन हालातों में पड़ के मसीह से दूर भी चले जाएंगे, गुमराह भी हो जाएंगे। और बहुत सारे नए लोग मसीही भी होंगे, यह भी कलाम से हमें पता चलता है। तो यहां पर जो हमने पढ़ा है कि नबियों की वजह से, झूठे नबियों की वजह से लोग गुमराह हो जाएंगे। यिर्मयाह में 29वें बाब की 8वीं आयत पढ़िए। यिर्मयाह ने भी इस बात की गवाही दी है, इस बात की नबूवत की है। यिर्मयाह 29वें बाब की 8वीं आयत पढ़िए। क्योंकि रब्बुल फ़ौज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है। खुदा यिर्मयाह को यूं फरमाता है और यिर्मयाह लिखता है कि खुदा ने मुझे यूं कहा है कि वो नबी जो तुम्हारे दरमियान हैं, वो नबी जो तुम्हारे दरमियान हैं, और तुम्हारे ऐबदान तुमको गुमराह ना करें, और तुम्हारे गैबदान तुमको गुमराह ना कर दें, और अपने ख्वाब बीनू को जो तुम्हारी ही कहने से ख्वाब देखते हैं, वो तुम्हारे ना ही मानो। कहने से ख्वाब देखते हैं, उनकी ना मानो। आगे, क्योंकि वो मेरा नाम लेकर तुमसे झूठी नबूवत करते हैं। वो मेरा नाम लेकर तुमसे झूठी नबूवत करते हैं, मैंने उनको नहीं भेजा, पर खुदावंद मैंने फरमाता उनको है। नहीं भेजा, खुदावंद फरमाता है। झूठी नबूवतें लोगों को गुमराह कर सकती हैं। क्या कलीसिया में नबूवत नहीं होनी चाहिए? कलीसिया में नबूवत होनी चाहिए, लेकिन बाइबल में लिखा है परखो, नबूवतों को परखो, खुदा की तरफ से है या शैतान की तरफ से है। नबूवतों को परखो, गलत तो नहीं है, शैतान तो अपना काम नहीं कर रहा। जब भी किसी को नबूवत मिले तो उसको परखा जाए, उसको चेक किया जाए कि ये गलत तो नहीं है, क्योंकि लिखा है कि तुम्हारे ख्वाबीन और तुम्हारे गैबदान जो हैं वो तुमको गुमराह करेंगे, और ख्वाब देखने वाले और झूठी नबूवत करने वाले वो नबूवत से कहेंगे खुदावंद फरमाता है, खुदा कहता है हालांकि मैंने नहीं फरमाया और मैंने उनको नहीं भेजा, तो भी वो गुमराह करके बहुत सारे लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं, खतरे का बायस हो सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया कि इन हालातों से पहले उसने ये कहा खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे। फिर आप 24वीं आयत इसकी पढ़े, नहीं, इसके मत्ती की इंजील के 24वें बाब की 24वीं आयत, मत्ती की इंजील के 24वें बाब की 24वीं आयत पढ़िए।
क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे। बहुत सारे कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुत सारे झूठे नबी इन दिनों उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे। ऐसे बड़े बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे। आमीन। ऐसे निशान और ऐसे अजीब काम दिखाएंगे। काम और निशान हमें गुमराह ना करें। अगर आप काम या निशान या मौजज़ात देखते हैं, यूं ना समझिए कि ये मौज से करता है तो ये बिल्कुल ठीक है। पिछले दिनों एक खबर चली थी, को बंदा इधर नारवाल साइड पर बड़ा वो करता था, मीटिंगें बड़ी करवा रहा था, और कहते थे कि वो नबूवत भी करता है और मौज से भी दिखाता है, और बहुत सारे लोग उसके पीछे लग भी गए। वो अपने आप को इंडिया का जाहिर करता था वो फैसलाबाद का, और उसने बहुत सारे लोगों को अपने पीछे लगाया। बहुत सारे लोग गुमराह भी हुए गलत नबूवतों की वजह से और मौजज़ात की वजह से। बाइबल ये बताती है कि बहुत से निशान और अजीब काम जाहिर करेंगे। ये भी तुमको मुतासर ना करें। कलाम में लिखा है, खबरदार गुमराह ना हो जाना, क्योंकि बहुत सारे झूठे नबी उठ खड़े होंगे और झूठे मसीह आएंगे और बहुत से निशान और अजीब काम जाहिर करेंगे। उन कामों की वजह से भी गुमराह ना हो जाना। अगर आप लूका की इंजील में पढ़ते हैं तो लूका की इंजील में आपको 21वें बाब की 8वीं आयत में मिलता है। लूका की इंजील के 21वें बाब की 8वीं आयत। उसने कहा, खबरदार गुमराह ना होना। उसने अपने शागिर्दों से कहा कि खबरदार गुमराह ना होना, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे। क्योंकि बतेरे मेरे नाम से या मेरा नाम लेकर आएंगे या मेरे नाम के साथ वो मंसूब होंगे, और कहेंगे कि वो मैं ही हूं। और ये भी कहेंगे कि जो आने वाला मसीह था जिसकी तुम इंतजारी में थे वो मैं ही हूं। और ये भी कि वक्त नजदीक आ और पहुंचा। ये भी कहेंगे कि वक्त नजदीक आ पहुंचा है। ये भी कहेंगे। क्यों ये कहेंगे? क्योंकि यीशु मसीह कहता था ना वक्त नजदीक है, तो वो भी यही कहेंगे। जिस तरह यीशु मसीह कहता है कि वक्त नजदीक है, और वो भी इस तरह के लफ्ज बोले सेम जैसे यीशु मसीह बोलता है, इस तरह की तालीम इस तरह के, ताकि इस बात से भी लोग फंस जाएं कि ये यीशु मसीह है जो कह रहा है कि वक्त नजदीक है। ये भी कहेंगे कि वक्त नजदीक है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। कलाम में लिखा है तुम उनके पीछे ना चले जाना। सुनिए, तुम उनके पीछे ना चले जाना। वो निशान भी दिखेंगे, मौजज़ात भी करेंगे, और अपने लफ्ज़ों में वो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे जो यीशु मसीह अपने कलाम में इस्तेमाल करता था, क्योंकि वक्त नजदीक है। ये भी कहेंगे, लेकिन होंगे वो झूठे, और निशान और अजीब काम मौजज़ात दिखाकर लोगों को अपनी तरफ काहिल करेंगे, माइल करेंगे और गुमराह कर देंगे, खुदा से गुमराह कर देंगे। ये शैतान की तासीर है जो इस तरह से काम करेगी। फिर अगर आप इस तिश्ना में 13वें बाब में, इस तिश्ना 13वां बाब पहली आयत से पढ़िए। खुदा ने अगर वहां तेरे पर, दरमियान कोई नबी या ख्वाब देखने वाला जाहिर हो, खुदा ने उस वक्त बनी इसराइल कौम को यह कहा, अगर तुम्हारे दरमियान कोई नबी या ख्वाब देखने वाला जाहिर हो और तुझको किसी निशान या अजीब बात की खबर दे, और तुझको निशान या अजीब बात की खबर दे, और वो निशान या अजीब बात जिसकी उसने तुझको खबर दी वकू में आए, वो निशान,
वो अजीब काम जिसकी उसने खबर दी वो वकूअ में आए, और वो तुझसे कहे कि आ हम और मबूदों की जिनसे तू वाकिफ नहीं पैरवी करके इनकी पूछा करें। फिर ये कहे कि आओ और मबूद में बताऊं जिसके तुम वाकिफ नहीं, उनकी पैरवी और पूजा करें। तो तू हरगिज उस नबी या ख्वाब देखने वाले की बात को ना सुनना, उसकी बात को ना सुनना। क्योंकि सुनिए आगे, क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा तुमको आजमाएगा, इस तरह से खुदावन तुम्हारा खुदा तुमको आजमाएगा, ताकि जान ले कि तुम खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल अपनी सारी जान से मोहब्बत रखते हो या मोहब्बत नहीं। रखते हो या नहीं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? सुनिए गौर से जरा, मैं आपसे सवाल करने लगा। यहां पर लिखा है खुदा ने बनी इसराइल कौम से यह कहा, कलाम दिया, अगर तेरे दरमियान कोई नबी या ख्वाब देखने वाला जाहिर हो और तुझको कोई निशान या अजीब का बात की खबर दे, खबर दे, खबर किस बात की दे? निशान या अजीब बात खबर दे आपको, कल भूचाल आएगा ये कहे, परसों बारिश होगी ये कह दे, या ये कहे कि अभी अभी आपके सामने कुछ होने वाला है और बाइबल में लिखा है वो वकूअ में भी आ जाए, वो बात जाहिर भी हो, पूरा भी हो जाए, तो फिर क्या करना है? मतलब ये निशानी है कि वो जो निशान बता रहा है, जो बातें बता रहा है, वो सारी की सारी पूरी भी हो रही हैं। मतलब पूरी हो रही हैं। क्यों हो रही हैं पूरी? क्योंकि खुदा आजमाने के लिए ऐसा भी होने देगा, आपको चेक करने के लिए कि वो झूठा है और झूठी नबूवत भी करता है और झूठे निशान भी देता है, जाहिर भी हो रहे हैं, और खुदा उन निशानों को उसके कहने के मुताबिक पूरा भी कर देगा ताकि तुम्हें आजमाए। और उसके बाद वो क्या करेगा? वो किसी और मबूद की खबर देगा कि आओ जिसको तुम नहीं जानते, जिससे तुम वाकिफ नहीं, उसकी पैरवी करें। इस तरह से वो निशान दिखा के राह से गुमराह कर देगा। तुम उसकी भी ना सुनना, क्योंकि अगर उसकी पूरी हो भी गई है तो खुदा ने तुम्हारी आजमाइश के लिए यह किया है कि तुम क्या उससे प्यार करते भी हो नहीं करते। तुम्हारी आजमाइश के लिए यह होगा। तो यहां पर यीशु मसीह ने कहा बहुत सारे निशान और अजीब काम जाहिर होंगे। तो आगे क्या लिखा है? मत्ती की इंजील के 24वें बाब की 24वीं आयत को इस तरह से लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे निशान और अजीब काम दिखाएंगे, अगर मुमकिन हो तो बुजुर्गों को भी गुमराह कर लें, अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर दे। अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर दे। बरगजीदा क्या होते हैं? बरगजीदा क्या होते हैं बताइए जरा। जितने बुलाए गए हैं, जितने लोगों को बुलाहट हुई है खुदा की तरफ से, वो सारे बरगजीदा नहीं हैं। कलाम में लिखा है सारे के सारे बरगजीदा नहीं होते। बरगजीदा कौन होते हैं? बुलाए भी हों और खुदा के कलाम के साथ भी चलते हों। अगर आप इसको सही जानना चाहें तो आप मत्ती की इंजील में मत्ती की इंजील के 22वें बाब में 12वीं आयत से पढ़िए या 11वीं से पढ़ लें। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया, जब बादशाह मेहमानों को देखने के लिए अंदर आता है तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो उसने शादी के वहां पर लिबास एक में था। आदमी को देखा जो शादी के लिबास के बगैर था।
और उसने उससे कहा, मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? उसने पूछा कि तू शादी की पोशाक के बगैर क्यों आ गया है? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था, उसका मुंह बंद हो गया। उस पर बादशाह ने खादमों से कहा कि इसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो। बादशाह ने खादमों से कहा इसके हाथ पांव बांधो और बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, वहां पर रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, क्योंकि मगर बुलाए बरगजीदा हुए तो बहुत हैं मगर बरगजीदा थोड़े हैं। बुलाए हुओं की तादाद ज्यादा है मगर बरगजीदा थोड़े हैं। जितने लोग तौबा करते बपतिस्मा लेते हैं वो सब बुलाए गए लोग हैं, लेकिन उनमें बरगजीदा थोड़े हैं। बरगजीदा थोड़े हैं, बरगजीदा तादाद कम है। वो जो बगैर पोशाक ही आ गया था वो बुलाया हुआ था, बरगजीदा नहीं था। बुलाया हुआ था, लिबास तैयार नहीं हुआ था, उसका पोशाक उसकी तैयार नहीं थी। जो कलाम को सुनते हैं, कलाम के जरिया से कलाम पर अमल भी करते हैं, बाइबल में लिखा है वो कलाम के जरिया से वो धुल जाते हैं और कलाम उनको तैयार करता है। कलाम में लिखा है वो कलाम से गुसल देकर, कलाम से धो धो कर एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया तैयार करता है कलाम के जरिया से, जिसके बदन पर दाग या छुरी या कोई निशान ना हो बल्कि बेऐब हो। ऐसी कलीसिया वो कलाम के जरिया, बगैर कलाम के बगैर बुलाए हुए तो थे, लेकिन था वो कलाम के बगैर, कलाम की तैयारी के बगैर, कलाम पर अमल करने के बगैर वो बुलाया हुआ तो था, लेकिन उसकी पोशाक ठीक नहीं थी। उसको कहा गया, मियां तू बगैर पोशाक के यहां क्यों आ गया? उसके पास जवाब नहीं था, उसका मुंह बंद हो गया। फिर उसके लिए आर्डर हुआ कि इसे वहां पर डालो जहां रोना और दांतों का पीसना है, और साथ ये भी लिखा है क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर बरगजीदा थोड़े हैं। आपको अंदाजा हुआ बरगजीदा किसको कहते हैं? बुलाए हुओं में से बरगजीदा निकलते हैं। तो यहां पर लिखा है अगर मुमकिन हो तो बरगजीदा भी गुमराह हो जाएंगे। अगर मुमकिन हो तो बरगजीदा भी गुमराह हो जाएंगे, निशानों की वजह से, अजीब कामों की वजह से। वो कहेंगे जी हमने तो मौजज़ा देखा था, तो ये हुआ था, ये हुआ था, और जो बातें वो कहता था पूरी भी होती थी। और उसके बारे में जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूं, वो इंडिया का ज़हर कर रहा था, वो ये भी बता देता था हर एक आने वाले को कि तेरा घर किधर है, तेरे घर के सामने कौन सा दरख्त है, तेरा दरवाजा किधर है, कमरे कितने, ये भी बता देता। और उनको यह भी बता देता था कि तुम्हारी जेब में क्या है। लेकिन वो गुमराह करने वाला ही निकला बाद में। लोगों ने बाद में मुखालफत, लेकिन पहले बहुत सारे लोग गुमराह हो चुके थे और वो झूठा भी निकला, पकड़ा भी गया बाद में। ये सारी बातें हैं, लेकिन उसने अपने कामों के जरिया से बहुत सारे गुमराह लोग कर लिए, बहुत सारे लोग को अपने पीछे लगा लिया अपने कामों की वजह से। बाइबल लिखा है अगर वो काम वकूअ में आ भी जाएं, लेकिन वो कहता है कि और मबूदों की पैरवी कर, इससे पहचानना है आपने। इसका मानी ये है कि मौज़ात निशान पहचान नहीं है, उसके मुंह का कलाम पहचान है कि कहता क्या है और अमल क्या कर रहा है, उसकी अमली जिंदगी कैसी है। आप उसकी अमली जिंदगी से पहचान सकते हो, उसके मौज़ात से उसको नहीं पहचान सकते। अगर मौज़ात की बात हो तो जो मत्ती की इंजील में लिखा है, वो उस वक्त ए खुदावंद कहने वाले खुदा की बादशाही के वारिस सारे के सारे, ये नहीं कि कुछ तो होंगे लेकिन सारे नहीं होंगे। फिर कहते उस वक्त मुझे कहेंगे क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, हमने तेरे नाम से मौज़े नहीं दिखाए, हमने तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला।
जाहिर करते हैं, मौजों के जरिया से अपना तारफ करवाते हैं, नबूवत के जरिया से और बदरूहों को निकालने के जरिया से और मौजात के जरिया से वो अपना तारफ करवाते हैं कि हम मौजे करने वाले हैं, हम तो नबूवत करने वाले हैं। लेकिन जिससे वो बात करें वो आगे से क्या कहता है, ऐ बदकारो मेरी कभी तुमसे वाकफियत न थी, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलते हैं, वही है मेरे जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलते हैं। इसलिए खुदा ने इस्तिस्ना में उनको बनी इसराइल कौम को यह कहा कि अगर कोई नबी या ख्वाब देखने वाला कोई निशान या अजीब काम आपको कहे, आपके सामने जाहिर करे और वो काम वकू में भी आ जाएं, तो भी वो तुम्हें कहे कि और मबूदों की इबादत करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं जो आप जिनसे वाकिफ नहीं हैं, तो उनके पीछे ना जाना, क्योंकि मैं चेक करने के लिए यह कर रहा था ताकि पता चले कि तुम कितना प्यार करते हो, सारे दिल से, सारी जान, सारी अकल से। ये सारी चीजें होने वाली हैं। आइंदा मैसेज में मैं उन और कामों का जिक्र करूंगा जिनके जरिए से बरगजीदा गुमराह हो सकते हैं। ये खतरा है, ये बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए यीशु मसीह ने अपनी ये सारा पीरियड जो होने वाला है जाहिर करने से पहले ही कह दिया, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे। मुमकिन है बरगजीदा भी गुमराह हो जाएं, तो बरगजीदा बनिए और अपने आप को मजबूत करें। अगले मैसेज में बाकी चीज़ें सीखेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।